السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی سن 2023 کو ایک ایسے دن کے طور پر یاد رکھا جا رہا ہے جس نے پاکستانی سیاست کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ ایک سال پہلے آج ہی کے دن جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تو ان کی پارٹی کے مشتعل کارکنوں اور حامیوں کی طرف سے کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت کئی فوجی عمارتوں اور تنصیبات میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں نظر آتش کیا گیا، جس کے بعد ان کی پارٹی پر ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ پارٹی کے صف اول کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور ایک سال بعد عمران خان سمیت کچھ رہنما آج بھی قید ہیں اور کچھ روپوش ہیں۔ امریکہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ان گرفتاریوں اور پاکستان میں شخصی آزادیوں کے سلب ہونے کے معاملات پر تنقید کرتی آ رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی 2023 کے لیے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر جاری کی گئی رپورٹ میں 9 مئی کے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ انسانی حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے بعد سے گزشتہ ایک سال میں سیاسی جبر میں اضافہ ہوا ہے۔ 9 مئی کے موقع پر پاکستان میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کو ملکی تاریخ کا یوم سیاہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتیں 9 مئی کے واقعات کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کا موقف ہے کہ 9 مئی کو ہونے والی تمام تر شرانگیزی کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے۔ سابق وزیر اعظم ان الزامات کی متعدد بار تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کی 27 سالہ سیاسی جدوجہد میں انہوں نے کبھی تشدد پر مبنی سیاست نہیں کی۔ عمران خان 9 مئی کے واقعات کو سازش قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس کے زیر نگرانی جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ تفصیلی رپورٹوں کے لیے وزٹ کیجیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اور آئیے اب غزہ کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے سی این این ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیل کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ رفح پر قبضہ کرتا ہے تو امریکہ توپ خانے کے گولے اور دیگر ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دے گا۔ انہوں نے اس حقیقت پر افسوس کا اظہار کیا کہ امریکی بم گرانے سے عام شہری مارے گئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو بھاری ہتھیاروں کی فراہمی عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ غزہ کے شہر رفح میں اسرائیل کے کسی ممکنہ حملے سے شہریوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکی قانون سازوں نے اسرائیل کو بعض جنگی ساز و سامان کی فراہمی معطل کرنے کے صدر جو بائیڈن کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یہ فیصلہ امریکی پالیسی میں کسی ممکنہ تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، اگرچہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ یہ اقدام حتمی نہیں ہے۔ سینٹ میں اپنے ابتدائی ریمارکس میں سینٹ کے اعلیٰ ترین ریپبلکن رکن نے صدر بائیڈن پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اندرون ملک اپنی پارٹی کے اسرائیل مخالف گروپ کے سخت سیاسی دباؤ اور کیمپس کے کمیونسٹوں کے سامنے جھک رہے ہیں جنہوں نے خود کو حماس اور حزب اللہ کے جھنڈے میں لپیٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینٹ کے آزاد رکن برنی سینڈرز نے کہا کہ غزہ میں نیتن یاہو کی جنگ نے
जिस गैर मामूली इंसानी तबाही को जन्म दिया है, लाखों बच्चों को भूख का सामना है, उसको देखते हुए सदर बाइडन इस इंतहाई दाएं बाजू की इसराइली हुकूमत को बमों की तरसील रोकने में बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पहला कदम होना चाहिए। ऐवान की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के एक रुकन आर ओ खन्ना ने, जो माजी में जंगबंदी का मुतालबा कर चुके हैं, रॉयटर्स को बताया कि वो हैं, लेकिन इस इक़दाम को मुस्बत नजर से देखते हैं और जारहाना हथियारों के रोकने की हिमायत करते हैं। मगरबी रफा में तल सुल्तान में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली फजाई हमले में हस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक इमदाद दाखिल नहीं हुई है और फलस्तीनियों की तरफ से इस इलाके में इसराइली फौजी मुदाखलत के दौरान कारकुनों के फरार होने के बाद इमदाद वसूल करने वाला कोई नहीं है। ताहम उनका कहना था कि जुमेरात को इसराइल की जानिब करीम शॉलोंग क्रॉसिंग पॉइंट पर ट्रकों को देखा गया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान गजा में इंसानी इमदाद ले जाने वाले उर्दून के इमदादी काफिले पर इसराइली आबादकारों के हमले की शदीद मजम्मत करता है। उनका कहना था कि ये एक खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाने का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान जुनूबी गजा में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमले और कब्जे की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है, जो बैनुल-अक़वामी इंतबाह और काबिल कबूल बैनुल-अक़वामी रवैये की खिलाफ वर्जी है। अमरीका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने वाले 33 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद गजा जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों की तादाद 2600 से तजावुज कर गई है। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस रशीदा तलीब ने इस इक़दाम पर तनकीद की है, ताहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुतनब्बिह किया कि कानून साज इस बढ़ते हुए इख्तिलाफ का रास्ता नहीं रोक सकते। हिजबुल्लाह का कहना है कि जुमेरात की सुबह शाम पर इसराइली हमलों में इराक की अल नजाबा मुसल्लह तहरीक से ताल्लुक रखने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इसराइली फजाई हमलों में दमिश्क के जुनूब में सैयदा ज़ैनब के इलाके में इराकी अल नजाबा तहरीक के सकाफती और तरबियती मरकज को निशाना बनाया गया। इराकी धड़े के एक जरिए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस बात की तस्दीक की कि इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला एक सकाफती मरकज इसराइली हमले में तबाह हो गया, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। और अब पाकिस्तान, जनूबी एशिया और दुनिया भर से कुछ अहम खबरें। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर में एक घर से 7 मजदूरों की लाशें मिली हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब के शहर खानेवाल से बताया जाता है। गवादर सिटी पुलिस के एक अफसर ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहां मौजूद 7 मजदूर मौके पर हलाक हो गए और एक जख्मी हुआ। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक वजीर आला ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे UNHCR के आदाद और शुमार के मुताबिक सन 2024 के 3 महीनों में पाकिस्तान और ईरान से वतन वापस आने वाले अफगान पनाहगज़ीनों की तादाद में सन 2023 के पहले 3 माह के मुकाबले में 14 गुना इजाफा हुआ है। सन 2024 में UNHCR ने 18,700 के करीब अफराद की वापसी में मदद की थी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा के इलेक्शन में तवील इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनके दौरों में कश्मीर शामिल नहीं है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 1996 के बाद ये पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। भारत के ज़ेर इंतजाम इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके में लोकसभा की 3 नशस्तें हैं, जिन पर इंतखाबात होना है
और तीनों नशस्तों पर 2 मकामी जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बांग्लादेश से तकरीबन 140 रोहिंग्या पनागुज़ीनों को गैर कानूनी तौर पर इंडोनेशिया ले जाने वाली कश्ती के साहिल के करीब डूबने के बाद उस पर सवार 69 अफराद डूब गए हैं। जिंदा बच जाने वालों में एक 12 साला लड़की भी शामिल थी, जिसका कहना था कि कश्ती के कैप्टन और अमले के दूसरे चंद अरकान ने उसे और 3 दूसरी लड़कियों को मुसलसल ज्यादती के निशाना बनाया, मारा पीटा और धमकियां दी। लड़की के मुताबिक वो म्यांमार में फौजियों के जुल्म सितम से अपनी जान बचाने के लिए अपने खानदान के साथ बांग्लादेश चली गई थी, जहां से उसके वालिदैन ने शादी की गरज से उसे गैर कानूनी तौर पर मलेशिया भेजने के लिए इंसानी स्मगलरों की कश्ती में अकेले सवार कर दिया था। रूस के नायब वजीर खारजा सरगई ryabkov के हवाले से बताया गया है कि रूस अपने मगरबी मुखालिफिन को खबरदार कर रहा है कि वो उनकी तरफ से मुमकिन तशद्दुद की कार्रवाइयों के मुकाबले के लिए अपनी जौहरी सलाहियतों में इजाफा अपना फर्ज समझता है। ryabkov ने कहा कि इस वक्त इस सिलसिले में कोई तब्दीलियां नहीं की जा रही, लेकिन सूरत हाल बदल रही है। हम अपने मुखालिफिन को मुतनब्बिह करते हैं कि उनकी कार्रवाइयां यकीनन हमें ऐसे इक़दामात पर मजबूर कर रही हैं जिनका असल मतलब दिफाई कुव्वत को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान से जुमेरात को हज ऑपरेशन शुरू हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान से परवाजें मदीना के लिए रवाना हुई। हज फ्लाइट ऑपरेशन 10 जून तक जारी रहेगा और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि इस साल सऊदी अरब ने आज़मीन हज के लिए ऐसी तस्बीह मुतारिफ करवाई है जो जरासीम से पाक होगी। उस पर एक खास तेल की तय होगी जिससे हाथ के जरासीम उस पर असरअंदाज नहीं होंगे। ये तस्बीह हज पर जाने वालों को सऊदी परवाज में और मक्का पहुंचने पर दी जाएगी। इसे D&F लैब्स और बरतानिया की एथा डिजाइन ने तैयार किया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बेहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।